economic loss of it. 70,000 crore. And thereafter there will be a rehabilitation, recovery, and I said that reconstruction and all, at least 30,000 crore, 1 lakh crore. Understood? Abhi, Russia and Germany is establishing in a pipeline between, I said that with the with the Europe, and that pipeline cost is 1 lakh crore. And then the United States said that his economy is going to disturb due to this pipeline network, and then they are feeding their natural gas, because Russia has a full of natural gas, yes or not? And Germany wants. So Germany बोलता है कि भाई, Germany says that, European says that at any time he will stop supplying the gases, and it can make you to bound to what he wants accordingly. The Germany says it cannot be possible. We are only the target for him to supply. There is no one else he is going to purchase this natural gas. This is the issue. Another United States said that, okay, if he is getting, then he is going to, their income economy will be better. So what about my natural gas? And then putting pressure on Germany for this. He can't say about the Russia, yes or not? आजकल क्या लगता है ये legal pressure the America is doing, United States? It's not a legal one. But it can lead to one of the point to what is I said that war तो आज के डेट में नहीं होता है, एक बात तो ध्यान के रखो. War, one time Mr. Nobel, who has made the dynamite bomb, Nobel जानते हैं, Nobel पुरस्कार, Nobel Prize? He has made the dynamite, and he has said that when the whole world has bomb, that is the most peaceful world. Everybody knows what it can do. जब atomic bomb it has been dropped in Hiroshima and Nagasaki, that time only few countries, and it is only considered the United States has that. लेकिन कहीं नहीं कहा जाता है कि रशिया से चुराया गया था. इट्स अ डिफरेंट इशू स्टोरी एट ऑल. सो आई सेड दैट टाइम कोई ज़्यादा लोग नहीं थे, उसको डर नहीं था कि जापान उस पर अटैक कर देगा. यदि डर होता कि जापान के पास भी एटॉमिक बम है तो उसे 2-4 को ही बर्बाद किया है, तो वो किसी और को ही बर्बाद करता. यू नो दैट. तो आज के डेट में इट इज़ ओनली थ्रेटनिंग. दिस इज नॉन एज आई सेड दैट स्ट्रेटजिक वॉर. So strategic is intercontinental ballistic missiles. Agni series is a strategic warfare systems are there. It is not for the it is not for the war. It is for only making them to what? What? Threatening. अच्छा, ये हमने शायद आपको नहीं पता. India has made Agni 6. India has made Surya. And Agni 5, it has been said only 5,000 kilometer. China is talking about Agni 5 has only 5. It is not possible. It has the same thing the United Kingdom has, and his range is 13,000 kilometer. How is saying 5,000 kilometer? India is not saying, because India is a part of Missile Technology Control Regime, MTCR. He don't want to threaten America and all, so he want to make himself something like this. No, it's 4,990 kilometer. Not more than 5,000. This is, I'm telling you in the joke form, but it is 100% correct things. And even India is making Agni 6. क्या हम लोग सारी चीज खोल के रख दे कि हम क्या हैं? Never in the war we can never say something like this. You know that India has a capability to establish 104 satellite at one time. Then he, through one missile, he can send lots of, I said that, satellite he can send, na? Yes or not? Several satellites in the different orbits of the, what I said the above. Medium Earth orbit, and even the geosynchronous Earth orbit and the low Earth orbit, everywhere he can do. क्या एक मिसाइल छोड़ेगा उसके साथ क्या 10-12 मिसाइल और नहीं ले जा सकता है? Target here, 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 here. India does not say that I have this also. तो जब आप पढ़ोगे तो मजे करने के लिए पढ़ो कि what is the India, जब whenever you study something. ये तो मैं ऐसे ही बातें करते रहता हूँ. क्लियर? क्योंकि GS को आप कह नहीं सकते कि GS is only what? तो बहुत बड़ा
लिसन मी केयरफुली, इकोनॉमिक लॉस होता है। अभी बताया कि हाउ मच 1 लाख करोड़ कैन बी इन वन हुदूद साइक्लोन, एंड देर विल बी इन आइडेंटिफाइंग एंड सम असेसमेंट एंड हैज बीन डन बाय द, आई सेड दैट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, व्हाट इज द लॉस ओवर देयर इन उत्तराखंड, व्हाट इज द इकोनॉमिक लॉस। तो डिजास्टर हैज इकोनॉमिक लॉस एंड इकोनॉमिक लॉस इन जीडीपी। आप जीडीपी में वैल्यू करते हैं, यदि आप जॉब कर रहे होंगे तो जो भी कमाई है वो जीडीपी में काउंट हो रहा है। Yes or not? Yes or not? Final value of goods and services produced within the sovereign country of the nation in a particular financial year. Yes? And this is at the GDP at market price, not GDP at factor cost. So I am saying that हमारी GDP क्या होगी? कम होगी। तो लिखेंगे, हमें उसने बोला, सेंडाई ने बोला कि हमारे अपने इकोनॉमिक लॉस को भी क्या करनी है? कम, in the form of GDP. So write down. Substantial reduction in loss of economy in the form of GDP. In the form of, clear? This is clear enough. First substantial reduction I talked about in the form of what? Mortality, lives and? Next one I talked about substantial reduction in number of affected people. Next one, substantial reduction in the loss of economy in the form of. अच्छा, दिल्ली को बंद कर देना है, तो दिल्ली यदि ठप हो जाए तो किस कारण से ठप होगी? इंटरनेट। वाह, मजा आ गया। इंटरनेट बंद कर दो, दिल्ली बंद। थोड़ा और बिग सोचो, इलेक्ट्रिसिटी। सो कैन आई से इट इज एन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द डेवलपमेंट? यस और नॉट? तो हम लोग को ये भी सोचना है, ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इट। सो जो भी हमारे को लगता है जिसके वजह से देयर विल बी अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन आवर डेवलपमेंट प्रोसेस, तो उसका लॉस क्या होना चाहिए? बहुत कम होना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे? सब्सटेंशियल रिडक्शन इन द लॉस ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। कैन आई से दैट? इज इट क्लियर? सो राइट डाउन सब्सटेंशियल रिडक्शन इन द लॉस ऑफ क्लियर है? समझ में आ गया? सब्सटेंशियल, याद हो जाना चाहिए, सब्सटेंशियल रिडक्शन इन द लॉस ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। यदि ना समझ में आए, गो एंड डू द गूगल बाबा की जय। गॉट इट? सब्सटेंशियल रिडक्शन इन द लॉस ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। 4 पॉइंट क्लियर हो गए? इससे आपकी मेंस का आंसर इतना अच्छा हो जाएगा, यू डोंट नो दैट, यू विल राइट मच बेटर, मच बेटर, and you will get, if the 30 marks question, 45 marks question means suppose 3 questions are coming, and I know that you can be able to, जो मैं लिखवा रहा हूँ, what if you are able to inculcate 70-60% marks you will get, and try to draw the diagram, understood it? ये सब पानी गिरकर गंदा हो चुका। So what I said that सब्सटेंशियल। अब अगला 2 है इंक्रीज करना। 4 तो रिडक्शन हो गया, अगला क्या है? इंक्रीज। क्या करना चाहिए इंक्रीज? यस टेल मी। क्या इंक्रीज इन इंटरनेशनल कॉपरेशन? डू यू नो दैट ब्रिक्स व्हेन दे आर कमिंग टू द इंडिया, they are talking that we should share our practices of earthquake, we should share our practices of flood, how we are fighting the flood. So we'll share these practices with the other countries. Yes or not? Yes or not? Share these practices. Suppose I said that we don't have आप इंडिया को, अच्छा कहा भी इसलिए कहा जाता है ह्यूमन सेंट्रिक, इंडिया इज द कंट्री हैविंग लॉट्स ऑफ डिफरेंट डिजास्टर्स, इसीलिए वो ह्यूमन सेंट्रिक। मतलब जब डिजास्टर रोका नहीं जा सकता है तो फाइनली हम लोग क्या बोलते हैं? भगवान मालिक है। यस और नॉट? 10% ऑफ द साइक्लोन कम्स इन इंडिया,
फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड 2 to 3% फ्रॉम द अरेबियन सी। हर साल सुनते रहते हो सुनते रहते होगे ना, एवरी ईयर। देन साइक्लोन, फ्लड, ड्रॉट, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। Therefore ह्यूमन सेंट्रिक, ये आपको ये ध्यान में होना चाहिए। बट द कंट्रीज लाइक डेवलप्ड कंट्रीज, दे आर नॉट, दे आर व्हाट, विच वन, ह्यूमन सेंट्रिक। Their thought process that I can solve the problem, but we thought that the God can solve the problem. Indian mind setup, ये सब चीजें, it is ना, our disaster management is earlier God centric, yes or not? एक दिन मैंने लिखवाया था। Now we are moving towards human centric, means relief centric to risk centric approach. Remember, आपको ये सारे जोड़ कर लिखना है, यदि पढ़ना बार बार और दिमाग में पानी की तरह वाटर, it should flow like water, then you can be able to write a better answer. And 100% बार बार रिमेंबर करना। मुझे बताने में इतनी खुशी हो रही है कि अब खत्म होने जा रहा है, and Sendai framework, and thereafter you can be very much good and you have to utilize anywhere, here and there. Increase in, I said, international cooperation with disaster reduction. क्या करना होगा? Increase in international cooperation. Clear है? Yes or not? So write down increase, दो increase वाले आएंगे, understood? Increase in इंटरनेशनल कॉपरेशन, कॉरपोरेशन हो गया, कोऑपरेशन। कई लोग बच्चे ये भी नहीं जानते, कॉरपोरेशन भी लिख देते हैं। दिस इज नॉट द कॉरपोरेशन, इट इज कोऑपरेशन, सहायता एक दूसरे के। इंक्रीज इन नंबर, इट इज इंक्रीज इन इंटरनेशनल कॉपरेशन फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। क्लियर है? विश्व में, इन द वर्ल्ड प्रेजेंट टाइम, सेवरल कंट्रीज आर, आई सेड दैट, हाईली अफेक्टेड बाय इट। क्या आपको लगता है कि नॉट ओनली इंडिया, एवरी कंट्री शुड हैव देयर स्ट्रेटजीज, दे शुड फॉलो द सेंडाई फ्रेमवर्क, यस और नॉट? एंड एज पर द ह्यूगो फ्रेमवर्क, वहाँ पे पहला ही पॉइंट था कि आपको अपने लिए क्या बनाना है, वी हैव टू मेक योर पॉलिसीज एंड वी हैव टू मेक लेजिस्लेशन एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। Perhaps remember in the priority, the first it has been said. तो क्या होना चाहिए? Increase in number of countries having national and local strategies. यदि नंबर आप जितना बढ़ाएंगे तो हर एक every country has different strategies. Somewhere my strategy can be helpful for them, other countries' strategies can be helpful for me. Yes or not? So write down increase in number of countries. Increase in number of countries with national and local strategies. Yes, tell me, what are the 6? Can you remember? याद हो गया? 2 increase and 4 substantial reduction. First I said that substantial reduction in, yes, loss of, या mortality भी लिख सकते हैं, loss भी, loss of lives and livestocks. Next one I said that another substantial reduction in number of affected people. Next one I said that substantial reduction in economic loss in the form of GDP. Clear? Next one, it is talking about, yes, substantial reduction in the which loss? Loss of critical infrastructure. Clear है? आपको समझ पूरा आ चुका है, बस यही रखना है कि इस चीज़ को दिमाग में। तो मैंने आपको 4 सब्सटेंशियल रिडक्शन बताया एंड 2 इंक्रीज इन। एंड इंक्रीज इन, फर्स्ट बोला इंक्रीज इन इंटरनेशनल कॉपरेशन विद फॉर द व्हाट? Disaster risk reduction. And then the 6th one I talked about, second increase in number of countries with national and local strategy. National to local, everywhere, yes or not? Another point I talked about, क्या हमारे इंडिया के डिफरेंट रीजन में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा होना चाहिए, और एक ही वार्निंग सिस्टम नहीं लगा रहना चाहिए, डिफरेंट लगा रहना चाहिए,
तो एक नहीं तो मल्टी लगना है, क्योंकि आप देख रहे उत्तराखंड है डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. सो व्हाट शुड वी से? access to multi-hazard early warning system. हमारे the country should have access to what I said, that multi-hazard. So write down access to multi-hazard early warning system. क्लियर? सो मैं फटाफट कहाँ से स्टार्ट करूँगा? फ्रॉम द ह्योगो फ्रेमवर्क एंड आई विल कम ओवर हियर. यू शुड बी कंप्लीटली, पहले मैं एक बार दोबारा सेंडाई को बोल देता हूँ. इट इज़ 2015 to 2030 11th goal, part of sustainable development goal, and I said there are 47, means 47 is 4 priorities and 7 targets. 4 priorities I said that understanding risk आपकी भी चलती रहनी चाहिए. मुझे लगे कि एकदम दिमाग में सेट हो गया. एक बार बोलते रह जाएंगे तो इसका मतलब है कि उसके बाद कल से आपको slowly and slowly from the tomorrow onwards your job is very less to put effort in it, but keep on revising in between. Understanding risk, then I said strengthening risk governance. अब हमें क्या करना है? इन्वेस्टमेंट. यस और नॉट? इन्वेस्टमेंट किस में करना है? डिजास्टर रेजिलियंस. इन्वेस्टमेंट इन डिजास्टर रेजिलियंस. एंड द लास्ट कैपेसिटी के लिए है इंप्रूविंग द कैपेसिटी फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड ब्रिंग बैक बेटर आफ्टर डिजास्टर. क्लियर? The next हमने 4 priorities देखा, 7 target. Substantial reduction in the what I said, that loss of lives and livestock. Substantial reduction in the number of affected people. Substantial reduction in what I said, that GDP, economic loss of economy in the form of GDP, and then substantial reduction in the loss of critical infrastructure. Understood it? Thereafter I talked about increase in international cooperation for disaster reduction, increase in another number of countries with national and local strategy, and the last hazard का warning system होना चाहिए. Yes or not? Access to ACCESS, access to multi-hazard early warning system. मज़ा आ गया आपको? सेंडाई फ्रेमवर्क थोड़ा सा टफ था. दोबारा मैं बोलता हूँ, टफ है नहीं, ये सोच है. टफ कुछ नहीं होता है, ये आपके जितनी बार करेंगे इट विल बी वेरी इजी. फर्स्ट 3 हमने बोला, देर आर 35. यस और नॉट? 3 गोल्स एंड 5 प्रायोरिटीज. 3 गोल्स आई टॉक्ड अबाउट. अपने दिमाग पर बिलीव करें, अपने आइज में जो दिखता है उस पर ध्यान दें. वर्ड तुरंत आएगा. हमने फर्स्ट वर्ड आई सेड दैट इंटीग्रेशन, सेकंड वन आई सेड दैट स्ट्रेंथनिंग, थर्ड वन आई सेड दैट इनकॉर्पोरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन. यस और ये चीज़ को याद रखेंगे तो फिर तुरंत चले जाएंगे. यस, देयर शुड बी, अकॉर्डिंग टू द HFA, देयर शुड बी एन इंटीग्रेशन ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन प्लानिंग. देखिए ये जो याद कर लेंगे ना, मेंस में लिखने के लिए बहुत अच्छा मौका मिलेगा. ये वाले से इसमें लिखा हुआ चीज़ काफ़ी, वहाँ पे रेस्ट इट इज़ लेस रिटर्न. आई सेड दैट, आई सेड हमने क्या बोला? देयर शुड बी, व्हाट आई सेड दैट देयर शुड बी इंटीग्रेशन ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यस, with sustainable development in planning, policies and program. Understood? और किस में होगा? जनरली लोग प्रिवेंशन वगैरह पे करेंगे काम ज़्यादा, तभी तो इसी में मुझे करना है, इंटीग्रेशन करना है. अरे कोई भी लोग करेगा तो ज़्यादातर इसी पे काम करेगा ना. और आई सेड दैट रिलीफ वर्क इज मोस्टली डन बाय द गवर्नमेंट एंड द लोकल पीपल ओवर देयर. यस और नॉट? तो ये जितनी भी स्ट्रेटजी होगी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, प्रिवेंशन, मिटिगेशन एंड आई सेड प्रिपेयर्डनेस. यस और नॉट? अगला हमने नेक्स्ट पॉइंट गोल था हमारा किसका? स्ट्रेंथनिंग. डेवलप एंड स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशन एंड मैकेनिज्म. करना होगा हमारे इंडिया का डिजास्टर मैनेजमेंट. एंड अनदर आई सेड दैट नेक्स्ट पॉइंट इट इज इनकॉर्पोरेशन, एंड विच वन आई सेड दैट इम्प्लीमेंटेशन. इनकॉर्पोरेशन ऑफ डिजास्टर, यहाँ पर प्रोग्राम पॉलिसीज नहीं है. इनकॉर्पोरेशन ऑफ डिजास्टर रिडक्शन अप्रोच इन डिफरेंट डिजाइंस. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं कंट्रीज में चल रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में. एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी ड्यूरिंग contingencies. Understood it? 3 goals clear. Coming on to the 5 priorities, and the 5 priorities are, I said that first, please doctor, track the progress, my progress,
आई एम रेडी टू एंगेज माई सेल्फ एंड कंप्लाई वॉट यू से, जब आप कहोगे वही मैं फॉलो करूँगा। अंडरस्टूड इट? बस ये याद रखना, उसके बाद तो धीरे धीरे कहानी स्टार्ट होने लग जाएगी, 2-4 बार रिवाइज करेंगे। प्लीज से क्या निकला? देयर शुड बी व्हाट? पॉलिसी, लेजिस्लेशन एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, एंड इट शुड बी ट्रैक्ड एंड रेगुलरली ट्रैक्ड एंड track the progress, and also community should be engaged in and ready to make them to ready to comply this disaster risk reduction। इसको comply करें, follow करें। अब आता है, अच्छा फॉलो करने का मतलब धीरे धीरे कल्चर में लाए। अगला वर्ड में ही कल्चर आ गया। क्या आ गया कल्चर में? प्रोमोट। क्या? प्रोमोटिंग द कल्चर ऑफ डिजास्टर रेजिलियंस, DR। प्रोमोटिंग द कल्चर ऑफ, कैसे? थ्रू डिसेमिनेटिंग 2 words HV, hazards and different types of vulnerability, disseminating the knowledge of hazard and vulnerability, different type of vulnerability। फिर हमने 3 वाला आ गया। नेक्स्ट वन इज promote, motivate disaster resilience and prevention। यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ाया कि प्रायोरिटीज कैसे बढ़ानी है। प्रिवेंशन थ्रू डिसेमिनेटिंग द नॉलेज ऑफ SCV, hazards, capacity, vulnerability, understood, among the people। Then 4th one I said prepared। क्या करना है आपको? Prepared at all levels in the form of authority, individuals and community, सभी को prepare करना है against the disaster। And thereafter we have seen last one जिसमें हमने क्या बोला है? Yes, seal, changing seal and impact of hazards associated with the GCCWW। और हमने बोला कि वी शुड ट्राई टू, व्हाट आई सेड दैट एज पर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ अवेयरनेस, बिकॉज एवरी टाइम देयर इज व्हाट? चेंजिंग इन यस टेल मी, सोशल कंडीशन, environmental condition, economic condition and land use, and at the same time we should keep on giving awareness regarding impact of hazards associated with geological events, climate variability, climate change, weather and water। Understood it? मज़ा आ गया आपको? इसको बार बार रिवीजन करना ये सबसे हार्ड था और मुझे इसके लिए समय देना था। अब सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 में हुआ। यस, मेरे साथ बोलेंगे AMCDR। ए से एशिया हो जाएगा। एशिया के मिनिस्टरों को भारत में बुलाया गया, एशियन मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस। एशिया के मिनिस्टर को बुलाया गया भारत में, इंडिया में, एंड देयर इज अ कॉन्फ्रेंस रिगार्डिंग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, AMCDR। समझ में आ गया? एंड ऑल गेट together and they are ready to share their practices। Simple, they are ready to share their practices, and the 2 documents has come out। One is New Delhi Declaration, in which PM Modi has given 10 agenda program। वो याद नहीं रखना, बस ये दिमाग पे रखना। Understood? And there is an Asian regional plan। अगला डॉक्यूमेंट बना कि एशिया पूरी कंट्री आई है ना भाई, कल न्यू दिल्ली के लिए तो अपना इंडिया ने कर दिया, एंड इंडिया हैज आल्सो सेड दैट देयर इज अ 10 एजेंडा एंड वी आर रेडी टू कोऑपरेट अदर्स आल्सो। उसमें मैं बता दिया, मेंशन कर दिया 10 एजेंडास। अनदर, इट इज एन एशियन रीजनल प्लान फॉर अडॉप्टिंग सेंडाई फ्रेमवर्क, फॉर अडॉप्टिंग, उसको अडॉप्ट करने के लिए एशिया के पूरे रीजनल प्लान बनाया है कि हमें क्या करना है? अडॉप्ट करना है एंड इंप्लीमेंट सेंडाई फ्रेमवर्क। कहानी खत्म। समझ में आ गया? सो आपने देखा AMCDR, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन एंड एशियन रीजनल प्लान फॉर अडॉप्टिंग एंड इंप्लीमेंटिंग सेंडाई फ्रेमवर्क। कहानी खत्म। सो राइट डाउन, इन 2016, ये कब होगा? जस्ट 2015 में आया सेंडाई फ्रेमवर्क एंड 2016 AMCDR। पहले टॉप में हेडिंग लिख लेंगे AMCDR। हेडिंग इज AMCDR। व्हाट इज द फुल फॉर्म? याद हो चुका होगा, एशियन मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। कभी कभी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए DR 2 ही वर्ड लिखे रहते हैं। R का मतलब
reduction, risk reduction. AMCDR, clear है? In 2016, in 2016, India with different countries of Asia region, India with different countries of Asia region came together on one platform for disaster risk reduction, as per Sendai framework, and also ready to share their practices for different disaster. Clear? So India is sharing their practice, और ये point आप अलग, you can also write this point in the different point, yes or not? मैंने one line में लिखा दिया, but you can otherwise shift into that other. So in this conference, then all countries are ready to share their practices for different disaster. इसको आप second point भी बना सकते हो, because it's more point, more marks fetching. Next one लिखेंगे, through this conference, next point, through this conference, 2 documents has been released. 2 documents has been released. First, New Delhi Declaration, inverted comma close, New Delhi Declaration within the inverted comma, New Delhi Declaration with 10-point agenda, released by PM Modi. Clear? Second document क्या है, आपको याद हो गया? Asian Regional Plan for Adapting and Implementing. For Adapting and Books में आपको केवल implementation लिखा हुआ है. अरे बहन, बिना एडाप्टेशन तो इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से होगा? ध्यान में रखिएगा, आपके लिए आप उसको इनहांस कर रहे हैं. सो लिखेंगे एशियन रीजनल प्लान. सेकंड डॉक्यूमेंट इज एशियन रीजनल प्लान फॉर अडैप्टिंग and implementing Sendai, SENDAI, Sendai framework. This is clear? Second, इसके बाद लिखिएगा, thereafter Indian government has made NDMP, National Disaster Management Plan 2016. National Disaster Management Plan 2016. So here it is finished. Understood it? Clear हो गया? Which one? AMCDR. अब ऐसे वर्ड सुनते ही आपको डर नहीं लगना चाहिए, yes or not?
And New Delhi Declaration, what is this? There is a 10-point agenda. It is also for the Sendai framework के basis पे India has made. Yes. Another one I said that Asian Regional Plan for the what I said adopting and implementing Sendai framework. Understood it? और इसी कारण से इंडिया ने उस साल अपना एक प्लान बनाया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016. क्लियर है? सो वी हैव सीन लाइक दिस. NIDM को आप जानते हैं? NIDM, हु इज़ दिस NIDM? नेशनल इंस्टीट्यूट डिजास्टर मैनेजमेंट. आज ही बताया मैंने आपको. पूरे रिसर्च, साइंस एंड टेक, सारा कुछ यही रोल प्ले कर रहा है, असिस्टिंग दिस डिफरेंट बॉडीज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट. यस और नॉट? द नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये देखेंगे कि NIDM ही किसी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है, एनी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, सो NIDM गोज एंड सिट देयर. ओके, लाइक ध्यान से सुनेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सार्क? आप लोग जानते होंगे. सार्क जानते होंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल. क्या सार्क नेशन भी अपने डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर बना रखा होगा? तो इसको क्या बोलेंगे? SDMC, सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर. अंडरस्टूड? और हु रिप्रेजेंट फ्रॉम द इंडिया साइड? NIDM. सो राइट डाउन. NIDM, National Institute of Disaster Management, NIDM represents yes, SDMC. NIDM represents SDMC. SAARC पूरा लिख लेंगे, S के लिए फुल फॉर्म ऑफ SAARC ऐसे लाइक दिस, SAARC. SAARC डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन. और आप जानते हैं कि जितने भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कंट्रीज हैं सार्क के अंदर में आते हैं. दैट इज़ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव. अंडरस्टूड? सो इफ़ इट इज़ कमिंग लाइक दिस, तो आपको इन नेशंस में जब उनकी रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है फ्रॉम द इंडिया साइड? इसमें NIDM. अंडरस्टूड इट? So here we have finished with. Now we are going to the next story, earthquake disaster. Earthquake. स्टार्ट करें या हाँ? अच्छा, कल के लिए छोड़ दे. साइक्लोन किस दिन के लिए छोड़े? फ्लड, हीट वेव और हाँ, ख़त्म करने के लिए मैं अभी इतने मिनट में भी ख़त्म कर सकता हूँ. आई कैन फिनिश अर्थक्वेक इन द से. हाँ, कल के लिए. वाह, विद एंटरटेनमेंट एंड समझ में आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 एंटरटेनमेंट? वो तो मूवी का है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्या है, हम लोग पढ़ेंगे एंटरटेनमेंट वे में. आई विल एंटरटेन योर क्वेश्चंस बट यू डू नॉट आस्क क्वेश्चन. And I am also ready to entertain your question from the both the sides. And you should also entertain my questions also. तो वो भी नहीं. Clear? So, तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा नहीं लेकर चलते हैं. और साथ में अब हम लोग अर्थक्वेक है, आप लोग अपनी तरफ से अर्थक्वेक जो है पढ़कर आ जाना. Whatever thing that you can do. अब ये मत पूछना कि सर P वेव्स क्या होता है, S वेव क्या होता है, L वेव्स क्या होता है, R वेव्स क्या होता है, व्हाट इज़ दिस. यू कैन आस्क मी आफ्टर द क्लासेस इफ़ यू थिंक, क्योंकि मेरा रोल उसमें नहीं रहेगा. हम लोग को पढ़ना है अर्थक्वेक एज डिजास्टर, ऐसे कि व्हाट आर द काजेज ऑफ अर्थक्वेक एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक इन इंडिया. यस आर नॉट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, and then which are the prevention mitigation programs are there regarding, and what should we do after the disaster. तो आपको बहुत कुछ जान चुके हैं, यस आर नॉट? हमें वहाँ पर थोड़ा थोड़ा वर्ड डालकर उस कहानी को फिलअप करना है. अंडरस्टूड?